there's some takeaway from the session. And when we have great speakers like you coming in, then more people join in. So that really is awesome thing to see that people like you come over here and join us. So thank you so much. When Milinji, Anuji and Chakorbai are saying this, I have to be there. I can't say no. Already 32 members crossed on the group. Yes. Yeah, Sheila, Should we start? Yeah, you will introduce. Yes, Then I'll please. speak a moment, and then Vardhaman can take it. Yes, yes. We want So more of Vardhamanji. Okay, when you can't hear me, I had some issue with the connection last time I was speaking a couple of days ago. So, Chakorbai, if you can't hear me at times, kindly indicate. I will possibly mute my video, and it may become clearer. Maybe. no, No, it doesn't make a difference on this app. Only if your connection goes net goes haywire. Only that. Exactly. So, no. Therefore, I'm saying that if at all you just inform me, I will go off on the video. I'll manage that. Yeah, because last time I was told. Yeah. And already the recording is on. Huh? Oh, yeah. Vardhamanji, we can ask everybody to go off video, and you should be seen, I feel. Then people will be able to connect with you better, because we want to see you. So then everybody, all of us will go off video and you be visible to us. Then your bandwidth also will work. Sheila, I don't think so that problem will come. Let one of them be visible to me also. Let us see. Chakorbai will be there. Yes, And of course, I will be there. Yeah, let us manage that. I think so. We'll be able to manage. Okay. Yeah. Should we start the program now? Yeah. So let us all come together and welcome CA Dr. Vardhaman Jain ji. Unmute yourself. Your profile, sir, is so big. I will make an attempt to read it. I will try to make it short, but it is really big, and you are a well-achieved person. So Vardhaman ji is a chartered accountant with a doctorate in commerce from Pune University, engaged in public practice at Pune, focusing largely on tax litigations. He is former chairman of Pune branch of Institute of Chartered Accountant of India. I don't know, the year is not mentioned here. Yeah, so he has been associated with various professional bodies like Maratha Chambers of Commerce, Industries and Agriculture, Bombay Chartered Accountant Society, and so on and so forth. The list is very big. He has been paper writer and speaker at thousands of lectures, meetings, seminars, and conferences organized by various institutes across numerous cities in India. So he is popular all over India. That's nice. He has spoken on a variety of subjects ranging from audit, commerce, taxation, investments, individual development, and management. He speaks with passion on learning from life of Vivekananda. That's what Radhika was saying. We'll look forward to have you once again to talk on that subject, sir. No? And has been invited by the Ramakrishna Mutt to address their youth conventions. He is actively involved in social projects as well, and is engaged in operating homes for senior citizens and a destitute rehabilitation center through his NGO Jana Seva Foundation. Through another initiative called SOUL, School of Universal Learning, he has addressed thousands of individuals on self-development. That's nice. Amazing. He is the chief mentor of education initiative Intelligence Plus, which is engaged in imparting 21st century skills and entrepreneurship education to school children for the past 5 years. He also conducts a national competition called InnoVenture, which has participation of school children from country all over the country. That is really something big initiative, I would say. He has he has authored 2 books on taxation and has written a number of articles which appeared in national journals and papers. He was a regular columnist on the taxation matters of Times of India, Pune. He writes Hindi poetry. That's one more something really different from what actually you have studied. So he also won a prize award
of Sahitya Mani Pethe Award for poetry, besides several other awards for various organizations, including the Professional Excellence Award from the top management. An avid reader, a prolific writer, a passionate poet, an outstanding orator, a thorough professional, and a compassionate human being is how somebody summed up the profile of CA Dr. Vardhaman Jain ji. Wow. Sheila, Well, can I add a little? sure, Chakur. Yes, या please go. आणि वर्धमान म्हणजे मिलिंदचा साडू आहे. अनुज सिस्टर्स हजबंड. किशोरी and Vardhaman are both gold medalist chartered accountant. आणि Vardhaman and we are in one group of out of the box thinking. And whenever we are invited to speak, I always take a precaution of speaking before Vardhaman, because after Vardhaman it's not possible. So always one more speciality I'll tell you about Vardhaman. Whenever you see him, you'll always see him with a book. He's constantly reading. He's off mobile. Mostly after 6 o'clock, you can't contact him. Yesterday also he was off mobile. I managed through Milind to call him up. He's most of the time off WhatsApp. His passionate friend in life is always books. You will find a new book always in the hands of Vardhaman. So let's welcome Vardhaman. We are privileged to have a speaker like you. One of our common friends I can see here on the screen is Ramesh Bhau Kasat of Kasat Exclusive. Namaste Bhau. Yes, and many others who joined because Vardhaman is here. Let's welcome him. And Vardhaman, over to you. Your every word is going to be precious, worth its weight in gold. And let's enjoy this session. Yeah. Over to you, sir. Unmute him, Chakur. Yeah, I have. Okay. Yes. Yeah. Thank you so much, Chakur bhai. Thank you so much, Sheila ji, for the wonderful words of introduction. They almost flatter me out when something so good is heard. The other thing that happens when such a good introduction is given is that you have already put the person on a very high pedestal, and now that he has to live up to that level where you have placed him. I don't think it's a challenge for you, sir. Okay. I'm going to be speaking in Hindi. Yes. That's the first thing. When we spoke a couple of days ago about speaking, ki baat karenge Karishma Gappa Adda. That is the name I was told of the initiative that you have. और करिश्मा गप्पा अड्डा पर स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे. शायद राधिका जी ने कहा कि उस पर उन्होंने सुना है और उनको बहुत आनंद आया था, तो वही विषय को लेकर आगे बढ़ाएंगे. और मैंने कहीं आनाकानी की कि नहीं, वो विषय ठीक नहीं होगा अभी के लिए, और कोई विषय हम चुनते हैं. And then the subject that is there before you is an evolved me, stories of transformation, stories for transformation. अभी evolved me कहाँ से आया, वहां से मैं शुरू करूं. 40 दिन हुए तकरीबन हम अपने घरों में बंद है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. मैंने कईयों से बात की, मेरे क्लाइंट मित्र से बात कर रहा था मैं, और उन्होंने कहा कि वर्धमान जी मैं 40 दिन के लिए अभी घर में हूं. जिस दिन लॉकडाउन के दिन घर अंदर गया और जब मैं 50 दिन 40 दिन 60 दिन बाद बाहर निकलूंगा, तब आई शुड नॉट बी द सेम पर्सन. I should come out as a more evolved person. और मुझे बात बड़ी जची वो. मैंने उन्होंने अपनी भाषा में कहा था, मैंने उसको अपनी भाषा में कहा, अपने शब्द में कहा कि मैं इवॉल्व होके बाहर आऊं. लॉकडाउन में तो सभी जाएंगे, सबके पास समय होगा, सब सोचेंगे, सब चिंतन मनन करेंगे. मैं इवॉल्व होकर बाहर आता हूं. तो मोर इवॉल्व्ड मी में मैंने कहा मैं बात करता हूं. फिर मैंने सोचा कि इवॉल्व्ड मी पर एक दार्शनिक प्रवचन जैसा नहीं हो जाना चाहिए कि फिलोसॉफिकल टॉक होगी. अब क्या किया जाए, तो बोले कहानियां बोलेंगे. एंड राधिका जी, मिलिंद जी, अनु जी आर अवेयर कि कथाएं बोलने का मुझे शौक है. मैं जब भी बोलता हूं तब कथाओं का इस्तेमाल करता हूं टू ड्राइव होम पॉइंट्स. तो उसके लिए इफ यू सी दी सब्जेक्ट, इट सेज एन इवॉल्व मी, स्टोरीज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. अब वहां से शुरू करते हैं. कुछ देर के लिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड तैयार कर लूं और फिर विषय पर आ जाऊं. वर्धमान जी, हमने अपने बचपन से, हाँ जी,
थोड़ा जी। सा आपका बैंडविड्थ लोड बता रहा है आपकी। तो मैं सुनो ना, आवाज ठीक से आ रहा है आपको? आवाज परफेक्ट है, आवाज ओके, तो आवाज चल दे, आवाज में कहीं रुकावट हो जाए, चेहरा नहीं दिखे चलेगा, आवाज में रुकावट नहीं हो, किसी को डिस्टरबेंस आवाज का ना हो कि सुनाई नहीं दिया बराबर से। ठीक। ओके, तो आवाज में कहीं दिक्कत हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना, so that I can accordingly take care of what is being done. तो पार्श्वभूमि में बना दूं कि कहानियां हम अपने बचपन से कहानियां सुनते आए हैं, और करिश्मा गप्पा अड्डा है तो मैं समझता हूं इसमें 40-50 साल के भी होंगे, फैमिली मेंबर्स भी होंगे, शायद बच्चे भी होंगे, और बाहर से सुन रहे गेस्ट में भी परिवारजन के सारे सदस्य होंगे, ना सिर्फ पुरुष वर्ग होगा, महिला वर्ग भी हो। तो मैंने कहा कहानियां हल्की फुल्की हो, विषय हल्का फुल्का हो, सबके लिए रेलेवेंट हो, ऐसा कुछ करे और कहानियों की बात करें। कहानियां हमने अपनी उम्र में जब सुनी थी तब कहानियां शुरू होती थी वंस अपॉन अ टाइम, कहानी शुरू होती थी एंड तकरीबन खत्म होते दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, ऐसा कहानी का अंत होता था। या कि नहीं, बुराई पर अच्छाई का विजय हुआ और कहानी का अंत हुआ। ऐसी कहानियां हमने कई सुनी, अपना बचपन उसमें निकाला, और हम मानते थे कि कहानियां ये दादा दादी या नाना नानी के कहने की चीज है। हम उनके साथ बैठेंगे आसपास में, वो हमको कहानियां सुनाएंगे, और परिवार में एक दो छोटे व्यक्ति तो होते नहीं थे, बच्चे बहुत सारे होंगे, आज की न्यूक्लियर फैमिलीज में कम होते, बट अदरवाइज बच्चे होंगे, सारे बैठेंगे नाना नानी के पास या दादा दादी के पास, और कहानियों का दौर चलेगा। और हम बच्चों के रूप में जब थे तभी हमने कल्पना का एक अपना विश्व बनाया उन कहानियों के जरिए। हमने ये किया, और हमारा ऐसा मानना था कि आज भी हम मानते कि कहानी बोलनी है तो दादा दादी या नाना नानी बोलेंगे। पर मैं ये बोलता हूं कि ये एक मिथ है, ये मिथ्या है कि दादा दादी या नाना नानी ही सिर्फ कहानी बोलते हैं। आप आपके ही संवाद ले लो, आपके ही कॉन्वर्सेशंस ले लो, कहानियों से भरे पड़े हैं। आपका हर संवाद कहानियों से भरा पड़ा होता है। आप कॉफी पर मिलते हैं तब कहानियां शेयर करते हैं, आप ऑफिस में वाटर कूलर के पास जाकर मिलते हैं, दो स्टाफ मेंबर्स, कहानियों से भरा होता है। कोई सेल्समैन आपसे बात करता है, वो एक कहानी बताता होता है। कहानियां सिर्फ नाना नानी या दादा दादी बोलते हैं, ये हमने समझा हुआ चीज है। हकीकत ये है कि हम अपने कॉन्वर्सेशंस में, अपने संवादों में हमेशा ही कहानी बोलते आए हैं, बोल रहे हैं। इनफैक्ट वी आर वायर्ड फॉर स्टोरीज। पूरा वायरिंग ही इसका, इस शरीर का, इस मशीनरी का ऐसा है कि कहानियों के सिवाय चलता नहीं है। और एक अर्ज, एक इंपल्स, एक उत्सुकता होती है अपनी कहानी बयान करने की। और आप देखते ही होंगे कि हमको अच्छा कहानी बोलने वाला व्यक्ति अपने संवाद में कोई बैठा है, अपने कॉन्वर्सेशन के साथ में बैठा है, तो अच्छा कहानी बोलने वाला जो व्यक्ति हो वो सबको प्रिय लगने लगता है। We like people who are good storytellers in our group when we sit in a conversation. You would mark it out. अगर आप उस पर थोड़ा चिंतन करोगे, पीछे मुड़कर देखोगे कि कहां पर आपको आनंद है, तो जहां कहानियां सही ढंग से बोली गई, अच्छी कहानियां बोली गई, वहां आपका ध्यान गया। वैसे स्टोरी टेलिंग इज टाइम्स इमेमोरियल, आज की बात नहीं है। सदियों से कहानियां कही जा रही है। हमारे यहाँ हम रामायण सुनते हैं, महाभारत सुनते हैं, पंचतंत्र सुन रहे हैं, इंग्लिश में अगर ये सब फेबल्स पढ़ते हैं तो ये सब कहानियों का ही स्वरूप है। और कहानी के अंदर कहानी, कितनी ही कहानियां, एक रामायण को ले तो कितनी ही कहानियां अंदर निहित है। ऐसे कहानियों का एक दौर अपने लिए चलता आया हुआ है। इट्स बीन लॉन्ग, वी हैव बीन स्टोरी टेलिंग दिस टाइम्स इमेमोरियल। अब कहानियों से होता क्या है, और जैसे मैंने बताया, मैं ये आपके लिए भूमिका बना रहा हूं जहां हम आगे बढ़े। कहानियों में होता क्या है, आपका अनुभव आप शेयर करना चाहते हैं, आप बांटना चाहते हैं, आप अनुभव को तर्क करना चाहते हैं, उस पर इंटरप्रेट करना चाहते हैं, तब आप शेयर करते हैं। वो कहानियों के रूप में होता है। एक आप इसको साधन का जरिया इस्तेमाल करते हैं कि मेरी संस्कृति अगर मुझे पास करनी है, मेरा कल्चर मुझे देना है, मेरा इतिहास मुझे देना है, मेरे मूल्यों को मुझे पास करना है, तो मैं कहानियों का उपयोग करता हूँ। मुझे नए संबंध बनाने हैं, नए रिश्ते बनाने हैं, मैं कहानियों का इस्तेमाल करता हूँ। मुझे पुराने संबंध और मजबूत करने, इफ आई टू सीमेंट माय बॉन्ड्स, तो मैं कहानियों का इस्तेमाल करता हूँ।
या मुझे कोई प्रोफाउंड गहरा गहन स्टेटमेंट अगर देना है कहीं, तो महज स्टेटमेंट देने के बजाय मैं कहानियों का इस्तेमाल करता हूं और उन कहानियों के जरिए मैं वो प्रोफाउंड स्टेटमेंट सामने वाले तक पहुंचाता हूं। कहानियों का यही इस्तेमाल हुआ है, और हर कहानी को आप ले लेंगे, पीछे जाकर देखोगे, हर कहानी को लेंगे तो इनमें से ही कोई ना कोई वजह थी कि वो कहानी का इस्तेमाल किया गया। इनफैक्ट लियो टॉल्स्टॉय कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट ऑफ लिटरेचर की अगर व्याख्या करनी हो, लियो टॉल्स्टॉय बता रहे कि ग्रेटेस्ट ऑफ लिटरेचर की व्याख्या अगर करनी हो तो उसमें यह जरूरी हो कि अ मैन गोज ऑन अ जर्नी, वहां से शुरू हो और वहां से लिटरेचर शुरू होगा। तो कहानी की शुरुआत हो रही है कि एक इंसान दौरे पर निकला, भ्रमण के लिए निकला, वहां से कहानी शुरू होगी। या अ स्ट्रेंजर कम्स टू टाउन, कोई नया व्यक्ति अपने गांव अपने प्रदेश में आया और वहां से कहानी शुरू होगी। सो लिटरेचर में भी व्याख्या करते हुए लियो टॉल्स्टॉय जैसे व्यक्ति ने कहानियों की बात कही कि कहानियों से ही होगा ये सारा भ्रमण। अब मैं क्यों कहानी कह रहा हूं? Why am I telling or retelling stories, anecdotes? मैं क्यों बोलता हूं? तो मुझे लगता है कि राइट ब्रेन का कनेक्शन जो होता है, राइट ब्रेन की बात जब करते हैं हम, क्रिएटिव एंगल की बात करते हैं हम, विजुअलाइजेशन की बात करते हैं हम, फ्री आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात करते हैं हम, इंट्यूटिव की बात करते हैं, तब राइट ब्रेन का इस्तेमाल होता है और कहानियां राइट ब्रेन तक बराबर पहुंचती है। लेफ्ट ब्रेन को लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जो काफी हो, एनालिटिकल हो, लॉजिकल हो। हालांकि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पेशे में तो लॉजिकल एनालिटिकल होना बहुत जरूरी है, पर मैं ये मानता हूं कि इसके अलावा भी मेरा राइट ब्रेन काम कर रहा है, लेफ्ट ब्रेन के अलावा। जो राइट ब्रेन क्रिएटिव साइड पर चलता है और कहानियां क्रिएटिव साइड पर ही चलती है, वही लेकर चलती है। दूसरा कारण कि मैं भावनाओं का इस्तेमाल जोड़ने के लिए कर सकता हूं और किसी को भी कार्यान्वित करने के लिए, एक्शन में लाने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए कहानियों का इस्तेमाल करना ज्यादा उपयुक्त होगा। तीसरा, कोई प्रोफाउंड संदेश देना है। अगर मैं एज एन इंडिविजुअल किसी को संदेश, कोई गहन, कोई गहरी बात कहने को जब वो डायरेक्ट वर्धमान, हाँ जी, कैन यू हियर मी now? Yes, Now, yes. there was a lag. Okay. हाँ, Oh, there was. Okay. हाँ, I think when I was talking about profound statements being made, कि गहरी बात कहनी हो तो कहानियों का इस्तेमाल होता है, और that is, और lastly कहानियों का इस्तेमाल होगा if I have to spread sunshine. आप देख लो, महज प्लेन कॉन्वर्सेशन के बजाय जब कहानियां कही जाती है तो एक नर्म धूप का महसूस होना अपने लिए इजी हो जाता है। That is one important thing that happens with the story. Second is, if I have to give meaning to life, कहीं उसको जीवन को सार्थकता देनी है तो कहानियों के माध्यम से इसलिए दे सकता हूँ। किसी को ऊर्जा देनी है, किसी की चेतना बढ़ानी है, नव चेतन निर्माण करना है, तो कहानियों का इस्तेमाल किया जाए, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। और किसी को विचार और चिंतन करने को प्रवृत्त करना हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं कि कहानियां कही जाए। तो मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इन कारणों से लेकर, इन कारणों से इंस्पायर होकर मैं सोचता हूं कि जो भी बात कहनी है वो कहानियों के माध्यम से कही जाए। और कहानियों, हमारे पास भंडार है कहने को कहानियों का। तो मैं समझता हूं आज जब मैं कहानियां आपके साथ कहूंगा, ऐसे हो सकता है कि वो क्षण आए, Sir, ऐसा आ सकता है वो क्षण। may I just interrupt? Can you hear me? Your voice is cracking. Is it? maybe- Okay, हाँ. let me see if my going mute है. Now can you hear me better? Yes, actually, yes. Yeah, that's what I realized. Last time also somebody told me that if you ये वाला चेहरा नहीं दिखाओ तो आप ज्यादा ढंग से सुनाई देते हैं। अब वहाँ पे आपकी अच्छी तस्वीर लगा दीजिए सर। Yes, I think म्यूट बात करेंगे तो ज्यादा क्लियर सुनाई दे रहा है। कोई बात नहीं है, चेहरे में कुछ रखा नहीं है, बात आप तक पहुंचनी चाहिए और बात पहुंच जाएंगी तो ज्यादा आनंद आएगा। तो मैं बात कर रहा था कि चिंतन मनन करने को प्रवृत्त करने के लिए कहानियों का इस्तेमाल करना, और मैं समझता हूँ आज की कहानियों में ऐसा क्षण आएगा, ऐसा लम्हा आएगा जब आपका मन बदलने की इच्छा होगी, आपको चुनौती देगा, कहीं तो कहीं ललकारेगा,
कहीं उत्साहित करेगा, कहीं प्रेरित करेगा और आपको एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर ले जाए जहां हृदय पसीजेगा आपका, जहां मन परिवर्तन होगा, मत परिवर्तन होगा और जिंदगी जीने का एक नया सलीका, एक नया तरीका स्वीकार करने को, अख्तियार करने को आप मजबूर होगे। इंग्लिश में एक शब्द है, इंग्लिश में शब्द है मेटानोइया। मेटानोइया का अर्थ होता है अ जर्नी ऑफ चेंजिंग हार्ट, माइंड एंड योर वे ऑफ लाइफ। और मैं समझता हूं ये मेटानोइया का क्षण इन कोई भी कहानियों में से आप तक पहुंच जाए तो मैं समझता हूं आज के इस प्रयोजन की सबसे बड़ी उपलब्धि वो होगी, जितने भी सुनने वाले उन्हें। अब मेटानोइया को हिंदी में अगर कहने की बात करूं, बिकॉज मेटानोइया शब्द नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होता है, कि चित्त की जागृति हो, वो क्षण, जहां चित्त की जागृति हो, वो क्षण अगर इन कहानियों के माध्यम से आप तक पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया होगा। और अंत में एक बात, राधिका जी ने बात कही थी कि वो उनको बुलाइएगा, वो सही बोलते हैं, उन्होंने सुना भी है, पहले कथाएं भी सुनी है। तो मुझे याद आ रहा था कि चार्टर अकाउंटेंट है, चार्टर अकाउंटेंसी की बात कर सकते हैं, फाइनेंस की बात कर सकते हैं। अब तो लोग वेबिनार्स में सारे सब यही बात कर रहे हैं कि बिजनेस का क्या होगा, आमदनी का क्या होगा, पेमेंट्स का क्या होगा, सैलरीज का क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा। और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझसे भी यही अपेक्षा हो सकती थी। पर कहा जाता है कि एक मदारी होता है, मदारी, आप जानती होंगे मदारी कौन होता है, जो बंदर का खेल दिखाता है। अगर मदारी कितना भी अच्छा विषय पर बोल ले, लोग अंत में उसको कह ही देते हैं कि ठीक है, ये सब अभी एक बंदर का खेल दिखा दो थोड़ा। तो ये जावेद अख्तर साहब ने एक बार कहा था एक मीटिंग के दौरान कि सारा उन्होंने एक अच्छा बड़ा वक्तव्य किया घंटे भर का ऑन मुस्लिम फंडामेंटलिज्म और सम अदर सब्जेक्ट ऑफ दैट सॉर्ट। बट अंत में जब सवाल जवाब का विषय आया तब किसी ने सवाल उनको भेज ही दिया कि जावेद साहब ये सब ठीक है, आपकी पसंदीदा गजल सुनो। Please unmute yourself, sir. वर्धमान आपका ऑडियो म्यूट हो गया है, so please unmute yourself. Is it now? Yes, yes. Oh, okay. I don't know where you lost me. At what point did you lose me? You heard the Madari Javed talking about. Akhtar's last. Okay. हाँ, तो जावेद अख्तर साहब ने, okay, for a moment I come back. जावेद अख्तर साहब ने ये सुनाया था कि मैंने इतना अच्छा वक्तव्य कर लिया, बावजूद उसके लोग अंत में बोल ही देते कि गजल सुनाओ। मैंने मदारी ने बंदर का खेल नहीं दिखाया तो कहानी पूरी नहीं होती। मैं समझता हूँ राधिका जी ने जब बात की कि नहीं, उनको कहानियां, उनकी कथाएं सुननी है, वही करने बोलो, तो मुझे जावेद अख्तर साहब की कहानी याद आ गई। खैर, वो रही बात। अब इन कहानियों से मैं कुछ आपको नया बताने वाला हूँ, कुछ नया बताने वाला नहीं। मैं कुछ सिखाने वाला हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल सिखाने नहीं आया। कोई पाठ पढ़ाने आया हूँ, बिल्कुल भी पाठ पढ़ाने का मैं औचित्य भी रखता नहीं हूँ, शायद मैं वो नहीं करने वाला। मैं तो सिर्फ आपको याद दिलाने आया हूँ। आप यश में, कीर्ति में, संपत्ति में आप अपनी योग्यता के अनुसार अपने अपने मकाम पर आज पहुंचे हुए हैं। और इस मकाम पर पहुंचने की यात्रा में आपने ये सारा अनुभव किया होगा, देखा होगा, आजमाया होगा। ये सारे मुद्दे जिन पर मैं बात करूंगा वो सारे आपने देखे हुए होंगे। बावजूद उसके मैं समझता हूं मैंने याद दिलाने का काम तो कर ही लेना चाहिए। उसमें कोई नुकसान नहीं है, उसमें आनंद द्विगुणित ही होगा और आनंद की अनुभूति होगी। वो लेकर मैं चलता हूं आगे कि मैं सिखाने नहीं आया, मैं सिर्फ याद दिलाने आया हूं। और पहला वाकया आपको सुनाऊं कि एक प्रोफेसर साहब एक कक्षा में अंदर घुसे, बच्चे सामने बैठे हुए, पहली मर्तबा प्रोफेसर साहब कक्षा में आए हुए, पहली बार विद्यार्थी उन प्रोफेसर को देख रहे हैं। और प्रोफेसर ने प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करने के बाद पहला सवाल किया कि बच्चों मुझे ये बताओ, इस क्लासरूम का, इस कक्षा का ये जो लेंथ है इस कक्षा की, वो लेंथ कितनी है, क्या लेंथ है इस कक्षा की? तो सवाल बहुत सीधा था, कोई लंबा सवाल था नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं वो बोलने के लिए। तो लोगों ने कहा ये करीबन 30 फीट का होगा, किसी ने कहा ये 10 मीटर का होगा, किसी ने 25 फीट का होगा, किसी ने कहा 40 फीट का होगा। सबने लेंथ का अपना अपना अनुमान लगाया
और जवाब प्रोफेसर की तरफ फेंक दिए। प्रोफेसर साहब ने जवाब सुने, जवाब सही है गलत ये बात पर तो वो पहुंचे ही नहीं। उन्होंने कहा, आप में से एक ने भी ऐसा नहीं कहा कि मुझे इस कक्षा की लेंथ पता नहीं है क्योंकि मैंने नापी ही नहीं है, मुझे नहीं पता, मैंने अनुमान लगाया, मैंने बोल दिया। ठीक ऐसी ही हालत हमारी सबकी भी है। We will speculate, we will estimate, but we will not say that मुझे पता नहीं है। और सोक्रेटिस पैराडॉक्स कहा जाता है। सोक्रेटिस को आप जानते ही है। सोक्रेटिस पैराडॉक्स जो प्लेटो ने बाद में बात की है उसकी, कि सोक्रेटिस ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि all I know is that I know nothing and I am not sure about that too। आप समझ रहे कि मैं वो भी नहीं जानता कि मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता, पर उसका भी मैं श्योर नहीं हूं कि मैं जानता नहीं हूं। मतलब इतने हद तक मैं नहीं जानने की बात वहां पर कही गई थी। और मैं समझता हूं आज के हमारे विषय की शुरुआत वहीं से शुरू हो कि आई रिमेन अ स्टूडेंट ऑल थ्रू लाइफ। द मोमेंट आई हैव द सोक्रेटिस पैराडॉक्स बिफोर मी, आई एम श्योर टू बी अ स्टूडेंट ऑल थ्रू माय लाइफ, एवर रेडी, ईगर टू लर्न, रीलर्न, अनलर्न एंड नो अगेन, बी रिमाइंडेड ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग। यही प्रोफेसर ने उस कक्षा में आगे एक सवाल किया। एक सामने स्क्रीन पे उन्होंने चित्र दिखाया। चित्र था माउंट एवरेस्ट का। माउंट एवरेस्ट का चित्र सामने रखकर वही स्टूडेंट्स को उन्होंने दूसरा सवाल किया कि आप देख रहे क्या है? तो बच्चों ने जवाब दिया, माउंट एवरेस्ट है। कोई डिफिकल्ट बात नहीं थी, माउंट एवरेस्ट है। प्रोफेसर साहब ने दूसरा सवाल किया, इस माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए, शिखर पर पहुंचने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होगी? सवाल एक, जवाब अनेक हो सकते हैं और अनेक जवाब आए भी। किसी ने कहा हाई अल्टीट्यूड इक्विपमेंट लगेगा, किसी ने कहा ट्रेनिंग लगेगी, किसी ने कहा स्ट्रेंथ लगेगा, किसी ने कहा मुझे स्टैमिना लगेगा, किसी ने कहा मुझे ऑक्सीजन भी लगेगा। सबने अनेकों अनेक जवाब दिए जो स्वाभाविक थे कि ये जवाब दे कि माउंट एवरेस्ट के लिए मुझे ये सारी चीजें लगेगी। प्रोफेसर साहब ने जवाब सुने, सबको रोका और कहा, मित्रों, माउंट एवरेस्ट के लिए ये सारी चीजें लगेगी, बात सही है, पर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा जो चीज लगने वाली है वो एक माउंट एवरेस्ट। एक माउंट एवरेस्ट लगेगा पहले, बाकी सारी चीजें तो बाद में आएगी, पहले माउंट एवरेस्ट लगेगा। और ये कहानी के जरिए मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, इतना ही बताना चाहता हूं कि हमारे भी जिंदगी का मकसद कौन सा माउंट एवरेस्ट है? कौन सा माउंट एवरेस्ट है जो मैंने चुना है अपने आप के लिए? वो जिस दिन मैं मंजिल रखूं सामने, क्योंकि ख्वाहिशें खत्म, मंजिल की ख्वाहिश ना हो तो कोई फायदा नहीं, और जिस दिन मंजिलें खत्म हो जाएगी वो जिंदगी की समाप्ति होगी। तो आई नीड टू हैव अ माउंट एवरेस्ट इन माय लाइफ, ऑल द अदर थिंग्स विल फॉलो। मैं पूछना चाहता हूं और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप सभी को, मेरे सुनने वालों को, कि व्हाट इज योर इंडिविजुअल माउंट एवरेस्ट? और इस पर एक पूरा 50-60 मिनट की बात हो जाए, बट यहीं पर मैं इस शब्द को, इस विषय को विराम देता हूं। बशीर बद्र एक कवि है जिनकी 4 पंक्तियां इस वक्त मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको। उसने कहा था, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। इस मंजिल आफ्टर मंजिल, एवरी डे आई हैव सीन अ मंजिल। और मील का पत्थर, माइलस्टोन नहीं देखे मैं कहां पहुंचा हूं, मैंने मंजिल देखी है। ये मंजिल हो गई, अगली मंजिल अपने लिए तय की है। और जाते जाते बात मंजिलों की करते हुए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा आपको कि मंजिल सामने रखते वक्त माउंट एवरेस्ट ही रखिएगा। माने क्या प्रयोजन बोलने का? भावार्थ ये कि मंजिल अपनी सोचते वक्त ऊंची मंजिल रखे। कोई छोटा पहाड़ जाना नहीं है, कोई छोटा माउंटेन जाना नहीं, बड़ी से बड़ी मंजिल जो है वही रखे, माउंट एवरेस्ट जैसी ही रखे। क्यों? वो एक सीधी सी बात है, माने हल्की फुल्की बात, कि जिस दिन आपने आपकी सोच बड़ी कर ली, उस दिन बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। बहुत अहमियत वाली बात है।
कि जिस दिन आपने, मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस दिन आपने आपकी सोच बड़ी कर ली, उस दिन बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, तब तक कोई सोचेगा नहीं आपके बारे में। दैट सो मच फॉर माउंट एवरेस्ट। ये जब बात पूरी करी, तब मैं उस प्रोफेसर को वापस उस कक्षा में आपको ले जाता हूं, जब प्रोफेसर एक दिन बात करते हैं कि कल हमारे जो प्रिंसिपल है उनका जन्मदिन है, ऐसे वाला विषय को लेकर। तो ये एक स्कूल की बात मैं कर रहा हूं, जहां पे टीचर ने कहा कि ये स्कूल है जहां पे टीचर सिखा रही है, वहां पे बात हो रही है। उस स्कूल में एक गरीब बच्चा, जिसकी पहले की कहानी मैं बता दूं कि वो माँ और बेटे गरीब दोनों एक गांव के बाहर कहीं जंगल में रहते थे, और उस जंगल से लकड़ी काट कर उस गांव में बेचते थे और जेम तेम अपना पूरा गुजारा करते थे। जब बच्चा और माँ, वो छोटा बच्चा और माँ जब गांव से, उस जंगल से गांव में आते थे, तब बच्चे ने देखा कि वहां के कई बच्चे उसकी उम्र के स्कूल जा रहे हैं अपना यूनिफॉर्म परिधान करके। तो उसने गांव से लौटते वक्त माँ से कहा कि माँ, ये बच्चे जो जाते हैं लकड़ी बेचते काटते नहीं है, ये कोई बैग लेकर यूनिफॉर्म पहनकर कक्षा में, स्कूल में जाते ऐसे बता रहे, तो मुझे भी स्कूल जाना है। तो माँ ने कहा स्कूल जाना है? अरे, अपने पास तो रोजी रोटी पूरी करने को समय नहीं होता है, खाने के लिए पैसे उपलब्ध नहीं होते, ये इतना करते तब जाके अपना गुजारा होता है, तो स्कूल जाने की बात कर रहा है। स्कूल, तब बच्चे ने जिद कर ली कि नहीं, मुझे तो स्कूल जाना ही जाना है। तो माँ ने कहा देखो, ये घर पहुंच रहे जंगल की उस पार। माँ कहती है कि अब ऐसा करो, स्कूल के लिए मेरे पास तो कुछ है नहीं, तुम एक काम करो, इसके लिए पैसे लगेंगे, वो स्कूल की फी भरनी पड़ेगी, तुम एक काम करो, जाते जाते जंगल से निकलो कल, और वहां जंगल से गुजरते हुए भगवान कृष्ण को आवाज दो। जंगल में भगवान कृष्ण को जब आवाज दोगे तब भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, और वो जब प्रकट होंगे तब उनको कह देना, उनसे प्रार्थना करना कि तुमको स्कूल जाना है, तुमको पैसे दे दे। वो पैसे ले लेना और तुम स्कूल में जाके अपने एडमिशन करा लेना और स्कूल शुरू कर देना। बच्चा दूसरे दिन सुबह जाता है, जंगल में जाता है, जंगल में आह्वान करता है, भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, वो पैसे की प्रार्थना करता है, पैसे मिल जाते हैं, पैसा लेकर स्कूल में एडमिशन ले लेता है। स्कूल जाना लगता है, तब उसके ध्यान में आता है कि बच्चों के पास यूनिफॉर्म है और किताबें हैं। वो माँ के पास आकर फिर कहता है कि माँ, ये तो नहीं हुआ, ये तो स्कूल चला गया मैं, बट मेरे किताबों का और बस्ते का क्या, मेरे बैग का क्या? तो माँ ने कहा अब ये कहाँ से, ये और नई बला आ गई। आप सेम काम कर दो, जाओ जंगल से, जंगल में जाते हुए भगवान को याद करो, भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, उनसे मांग लेना और चले जाना। बच्चा दूसरे दिन वही करता है और स्कूल में पहुंच जाता है, परिधान होकर, ड्रेस पहनकर, स्कूल की बैग लेकर। स्कूल चलने लगती है। कुछ दिनों बाद उस स्कूल के टीचर का जन्मदिन होता है दूसरे दिन। तो पहले दिन अनाउंसमेंट होता है कि कल अपने क्लास टीचर का जन्मदिन है, तो टीचर के लिए कुछ ना कुछ हमने भेंट वस्तु लानी है। सब बच्चों ने, बच्चे खुश होकर घर जाते हैं, कहते हैं कि गिफ्ट लेके जाना है। बच्चा माँ के पास जाता है, ये गरीब बच्चा, वो कहता है कि मेरे स्कूल के टीचर का जन्मदिन है, मुझे गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा। माँ कहती है ये क्या भला है, गिफ्ट विफ्ट तो अपने पास हो नहीं सकता, अपने पास तो है ही नहीं कुछ देने को। तुम एक काम करो, भगवान कृष्ण को जंगल में जाते हुए याद कर लो और गिफ्ट मांग लो और पहुंच जाओ स्कूल। तो बच्चा जंगल में जाता है, वहां पर भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान प्रकट होते हैं, वो गिफ्ट मांगता है, भगवान उसके हाथ में थमा देते हैं। एक जग होता है जो दूध से भरा हुआ होता है, यही गिफ्ट समझता है, वो लेकर अपनी कक्षा में पहुंचता है। टीचर को विश किया जाता है, बधाइयां दी जाती है, और फिर सबकी बारी आती है गिफ्ट देने की। ये बच्चा बेचारा डरा हुआ, सहमा सहमा, क्योंकि बाकी के बच्चों के गिफ्ट रैप किए हुए ढंग से, इसके हाथ में एक जग दूध से भरा हुआ। सब बच्चों का जब देकर हो जाता है, तब ये बच्चे का नंबर आता है, इसकी बारी आती है, तो ये भी टीचर के पास पहुंचता है और बोलता है ये लीजिए मेरी तरफ से गिफ्ट। तो टीचर उसके पास देखती है, बोले मुझे पता ही था कि तुम बेवकूफ हो, जिस दिन से आए उस दिन से मुझे बेवकूफ लग रहा है, और ये भी तुमने क्या ला दिया, ये दूध का जग मेरे लिए क्या काम का? बोले ऐसा करो, अपने खानसामा को दे आओ, अपने स्कूल में जो किचन है उधर का खानसामा है, उसको ये दे आओ, मेरे कोई काम का नहीं है। बच्चा उदास हो जाता है कि मेरा गिफ्ट टीचर ने स्वीकार नहीं किया और मुझे वहां भेज दिया।
बच्चा खानसामा को देख के जग वापस क्लास में लौटता है, बड़ा दुखी। वो लौटकर बैठता ही है अपनी जगह पर, तब खानसामा दौड़ते हुए आता है, बोले टीचर को मिलता है, बोलता टीचर गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले इस लड़के ने कोई शरारत कर ली क्या? तो बोले शरारत नहीं कर ली, इसने तो गजब कर दिया। बोले क्या हुआ? बोले टीचर इसने जो जग लाया था दूध से भरा हुआ, वो मैंने लिया और उसको खाली किया और देखा तो वो दूध से फिर भरा हुआ था। फिर मैंने खाली करने की कोशिश की बड़े बर्तन में, फिर भी जग भरा हुआ। तो बोले ये तो गजब हो गया। बोले अब टीचर ने उस बच्चे की तरफ तेज घुर्रा कर देखा और कहा ये क्या किया तुमने, कहां से लाया ये कहां से आ गया? अब बच्चे को लगा अपना सारा राज खुल जाएगा, आज कहना पड़ेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। डर गया बच्चा, पर टीचर ने कहा बताना तो पड़ेगा कहां से आया। तो जब उसको टीचर ने बहुत रहकर पूछ लिया तो उसने टीचर को कहा देखो ऐसी बात है कि हम तो गरीब है, माँ ने कहा था जंगल से गुजरो, वैसे ही एडमिशन लिया, वैसे ही किताबें ली, वैसे ही मैंने अपने यूनिफॉर्म लिए और क्लास पहुंचा और वैसे ही मैंने गिफ्ट लिया है। तो बोले क्या कहा? टीचर ने पूछा क्या कहा? तुम जंगल से निकले, भगवान को याद किया और भगवान कृष्ण प्रकट हो गए तुमको, और तुमने भगवान कृष्ण से मांगा और भगवान कृष्ण तुमको दे दिया? बेवकूफी करते हो, ऐसे नादान बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। तो बोले नहीं हकीकत है, सही है। तो बोले चलो अभी के अभी हम जंगल चलते हैं। तो टीचर खानसामा आगे, बच्चा उनके आगे दिखा रहा है रास्ता जाने का, और सारी कक्षा के बच्चे उनके पीछे जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल की तरफ निकले, जंगल में ठीक पहुंचे जहां पे नित्य ये बच्चा पहुंचता था, जहां मांग करता था, वहां बच्चे ने प्रार्थना की, हे भगवान आज तो मेरी परीक्षा की घड़ी आ गई, आप मुझे इससे बचा लेना, मुझसे तार देना, मुझे तो बाहर निकाल देना इसमें से। और ये पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हो, आप दिखाओ, अब मैंने आपसे लाया था। वो कहते मानने को तैयार नहीं है। तो बोले ठीक है। उसने याद किया, भगवान की प्रार्थना की, तो भगवान सामने उसको प्रकट हुए, भगवान दिखने लगे बच्चे को। बच्चा खुश हो गया, दिल में ही, मराठी में से कहते हैं जीव भांड्यात पडला, ओ कि खुश हो गया, चलो इत्मीनान से अभी बैठ सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो उसने पीछे मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर टीचर के सामने और खानसामा और बच्चों के सामने देखकर कहा ये देखो मैंने कहा था ना, इनसे ही मैंने मांगा था। तो टीचर खानसामा जिस दिशा में इसने हाथ किया था पेड़ की तरफ, उधर देखा और बोले बेवकूफ कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है यहाँ पर। तुमको क्या सपना देख रहे हो तुम? कोई नहीं है ऐसा भगवान भगवान, ऐसे कोई भगवान आता है क्या? हो नहीं सकता, भगवान दिखाई नहीं देते, भगवान आते नहीं है, ऐसे कुछ होता नहीं है। इसने वापस बच्चे ने देखा तो इसको तो भगवान कृष्ण सामने दिखाई दे रहे हैं। वापस उसने कहा है तो टीचर देखिए ना, सामने ही तो है। बोले कहाँ है ही नहीं। जब टीचर ने दूसरी बार है नहीं कहा और हंसी उड़ाई उस बच्चे की, तब उस पेड़ की तरफ से आवाज आई, और वो आवाज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उस बच्चे को उद्देश्य करते हुए कहा कि बेटा जिनको मेरे होने पर ही विश्वास नहीं, उनको मैं कैसे दिखाई दूंगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, आवाज आई कि जिनको मेरे होने पर ही विश्वास नहीं, उनको मैं कैसे दिखाई दूंगा। कहानी यहीं पर खत्म होती है, पर उसका जो अल्टीमेट बात है वो वहां पर पूरी नहीं होती। वो मैं 4 शब्दों में आगे सुनाऊंगा कि आपकी श्रद्धा, फेथ, एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ बिलीफ, बिलीफ आपकी मान्यता है, आपकी श्रद्धा, फेथ की बात कर रहा हूं मैं। हिंदी इंग्लिश में इक्विवेलेंट ढूंढने जाए तब पर्याप्त इंग्लिश शब्द कई बार नहीं मिलते हैं, बट श्रद्धा के लिए फेथ वर्ड उपयुक्त होगा कहने के लिए कि आपकी अगर श्रद्धा आपकी मंजिल में नहीं है, आपकी काबिलियत में नहीं है, तो आपको वो मंजिल कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती, ये हकीकत है। तो मुझे श्रद्धा अटूट होनी पड़ती है मेरी काबिलियत में और मेरी मंजिल में, दोनों में, तभी जाकर मेरे प्रयास सफल हो सकते हैं। और श्रद्धा को डिफाइन करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बहुत सुंदर स्टेटमेंट कहा था कि फेथ इज दैट बर्ड that feels the light when the dawn is still dark. I repeat, faith is the bird that feels the light when the dawn is still dark. हिंदी में कहने का हो तो भोर में जब तक अंधेरा हो, जब अंधेरा हो भोर में, अभी तक भोर का उजाला नहीं हो, भोर का अब तक अंधेरा है, और जब पंछी को उजाले को महसूस वो करता है, उस महसूस करने को, जब अंधेरा है फिर भी उजाले को महसूस करना, वो श्रद्धा है। That is what is your faith. और रॉबर्ट शूलर जिन्होंने अच्छी किताब लिखी है, टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, रॉबर्ट शूलर की किताब है,
टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। उन्होंने उसमें एक स्टेटमेंट कहा है कि हैव फेथ इन योर फेथ एंड डाउट इन योर डाउट। हैव फेथ इन योर फेथ एंड डाउट इन योर डाउट। अब ये रॉबर्ट शूलर दूर की बात रही, हमारे अपने स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी बात कही थी कि आप करोड़ों देवताओं पर विश्वास कर लो, करोड़ों देवताओं को मान लो, पर अगर खुद पर विश्वास नहीं है, तब खुद पर विश्वास की बात थी, खुद की काबिलियत पर विश्वास नहीं है तो कोई मंजिल पाना मुमकिन नहीं है। ये रही बात फेथ की और श्रद्धा की, उसको लेकर थी ये बात। मैं अगली बात आऊंगा, जब फेथ श्रद्धा ऐसी स्ट्रांग हो आपकी, तब क्या हो जाता है, तब आपके पास साथ में जुनून एक होता है काम करने का, मंजिल तक पहुंचने का एक पैशन होता है, एक हौसला होता है। और उस हौसले को बयान करने के लिए मैं आपको एडमंड हिलरी के पास ले चलूं, वही माउंट एवरेस्ट की बात करूं कि माउंट एवरेस्ट पर एडमंड हिलरी पहुंचे थे। ये आप जानते ही, आपको ज्ञात होगा ही कि एडमंड हिलरी शेरपा तेंजिंग के साथ पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पहुंचे। माउंट एवरेस्ट की शिखर पर विजय पाने वाले पहले व्यक्ति एडमंड हिलरी। एडमंड हिलरी ने उसके पहले भी प्रयास किए थे और प्रयास नाकामयाब हुए होंगे, उसके लिए वापस जाना पड़ा। तो सेकेंड लास्ट ऐसा कहा जाता है, और भले ही कहा जाता होगा, माइथोलॉजी होंगी इस स्टोरी में, ये कहानी था पर ये बनाई गई कहानी है। बनाई गई हुई कहानी क्यों ना हो, बट उसमें जो सार है वो लेने जैसा है, उसमें का जो हमारे लिए लेसन है वो लेने जैसा है। एडमंड हिलरी जब सेकेंड लास्ट टाइम माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे और माउंट एवरेस्ट का शिखर उनको दिखाई दे रहा था, अब कुछ ही समय की बात थी कि वो माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाए। ऐसे वक्त में वहां का मौसम बदला, और मौसम ऐसा बदला कि उनको उल्टे कदम वापस आना पड़ा। जब वापस आने का निर्णय लेना पड़ रहा था उनको, तब उन्होंने जो बात कही वो मैं बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और वो कही बात जो वो ये, माउंट एवरेस्ट की तरफ देखते हुए, उसके शिखर की तरफ, उसकी चोटी की तरफ देखते हुए एडमंड हिलरी ने कहा, माउंट एवरेस्ट, मैं लौट कर वापस जा रहा हूं। अब तो मैं लौट कर वापस जा रहा हूं, मौसम खराब है, जाना ही पड़ेगा। अब तो लौट कर मैं वापस जा रहा हूं, पर मैं दोबारा आऊंगा, मैं दोबारा आऊंगा, एंड आई विल कॉन्कर, मैं जीतूंगा, मैं शिखर तक पहुंचूंगा। व्हाई? बिकॉज एज अ माउंट एवरेस्ट यू कैन नॉट ग्रो, बट एज अ एडमंड हिलरी, एज अ ह्यूमन बीइंग, आई विल ग्रो विद स्ट्रेंथ एंड कम बैक टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। वो शिखर तक पहुंचने वापस आऊंगा। अभिप्राय कहने का क्या है इस कहानी? अभिप्राय यही कि डू आई हैव दैट फायर इन द बेली अप्रोच टू सीइंग एंड कॉन्करिंग माय माउंट एवरेस्ट? It's so important that you have that fire in the belly approach when you want to. एडमंड हिलरी की बात कर ली, पुरानी बात कर ली, पराये देश के व्यक्ति की बात कर ली, अपने ही सुधा चंद्रन की मैं बात कर लूं आपसे। सुधा चंद्रन आप जानते होंगे, एक प्रोस्थेटिक लेग, जयपुर फुट लेकर चलते हैं, उनका एम्पुटेशन हुआ था, जयपुर फुट लेकर चलते हैं, वो डांस करते हैं, आप जानते ही है, कथक और भरतनाट्यम के वो एक्सपोनेंट है। ये डांस करने वाले सुधा चंद्रन की मैं बात कर रहा हूं। सुधा चंद्रन से पूछा गया था कि आप एक प्रोस्थेटिक लेग, जयपुर फुट लेकर, एम्पुटेशन हुआ आपके नेचुरल लेग्स नहीं है, लेग नहीं है, बावजूद उसके आप इतने बेहतरीन तरीके से कैसे कथक या भरतनाट्यम कर सकते हैं? तब जो सुधा चंद्रन ने जवाब दिया था वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सुधा चंद्रन ने कहा था कि फॉर डांसिंग you need spirit and not the legs. I am repeating. For dancing, for performing, you need spirit and not legs. बात बड़ी पते की कही थी। अभिप्राय क्या? Do I have that spirit? Do I have that junoon? Do I have that passion? Do I have that हौसला? क्योंकि कहा जाता है, 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूं आपको, कि मंजिलें उनको मिलती है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। महज पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। वो हौसला आप में अगर है तो उड़ान तो मुमकिन है, माउंट एवरेस्ट तक जाना कोई डिफिकल्ट नहीं। अब ये बात करते हुए जब पहुंचेंगे हम
मैं अगली कहानी की तरफ बढ़ूं। अगली कहानी में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं। एरोना नाम की एक फिश है, एक प्रकार की फिश है, मछली है। इस एरोना मछली की खूबी यह है कि ये 3 फीट तक लंबी होती है और 4.5 किलो इसका वजन होता है आमतौर पर। और इसकी ग्रोथ की एक खूबी है और वो खूबी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एरोना फिश की नॉर्मल ग्रोथ 3 फीट की और वजन 4.5 किलो का नॉर्मल। इसको आप एक्वेरियम में, इसकी खूबी क्या है ग्रोथ की, इसको आप एक्वेरियम में रखो, के साइज जितनी ही ये बड़ी, 2 फीट का तो 2 फीट तक की बड़ी। इसको कोई पॉन्ड में डाल दो तो बढ़कर 3 फीट 3.5 फीट हो जाएगी। पर इसको आप इसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दो, खुले में छोड़ दो, तो ये 1.2 मीटर्स की लंबाई और 7 किलो वजन की अरोना फिश हो सकती है। कहने का अभिप्राय क्या है? ये फैक्ट्स में अरोना फिश के आपको क्यों दे रहा हूं? अरोना फिश की ये बातें आपको मैं बता रहा हूं कि जो कुछ मान्यताएं आपके दिमाग में है, जो कुछ मान्यताएं अपने आप के बारे में आपने बना रखी है, वो सारी लिमिटिंग बिलीफ्स है। सारी, कि मैं योग्य नहीं हूं, मेरी उम्र योग्य नहीं है, अब मैं तो 50-60 साल का हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो सिर्फ 15 साल का हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी उम्र ही क्या है, मेरा क्वालिफिकेशन ही क्या है, मेरे परिवार में मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मेरा अनुभव ही क्या है, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, ये मेरी ज्योग्राफी, मैं कौन सी ज्योग्राफी, मैं अमेरिका में होता तो कर लेता, मैं भारत में हूँ, पूना में बैठा हूँ, पूना के कोई छोटे मोहल्ले में रहता हूँ। These are all limiting beliefs that we have built for ourselves. मैं जन्मा हूं, हाथ पांव चल रहे हैं, सुधा चंद्रन जैसी भी अवस्था नहीं है, उससे बढ़िया अवस्था है, फिजिकल बात कर रहा हूं मैं, मेरे पास ठीक ठाक का दिमाग दिया है, मैं समझ सकता हूं बात को। ऐसे में आपने आधी लड़ाई तो जीत ही ली है, आप तैयार हो, यू आर फुली रेडी। सो देयरफॉर दीज लिमिटिंग बिलीव्स हैव टू बी रिमूव्ड। और उसके लिए सही कारण देना है, तो मैं शेर का कारण उदाहरण दूं। एक शेर को मैं अगर आपको पूछूं, एक जंगल में वाइल्ड में रहने वाला शेर जो जंगल का राजा कहलाता है, क्या वो सबसे बड़ा जानवर है जंगल का? सबसे बड़ा जानवर तो आप कहेंगे हाथी है। सबसे तेज है कहेंगे नहीं, वो तो चीता है। सबसे ऊंचा है तो नहीं, वो तो कहेंगे आप जिराफ है। बड़ा नहीं, ऊंचा नहीं, ताकतवर नहीं, फास्ट नहीं। सबसे होशियार है तो बोले नहीं, फॉक्स होशियार होता है, वो नहीं होशियार होता, फॉक्स होशियार होता है। तो जब इतनी सारी कमियां लायन में है, ये सारी नहीं है, उपलब्धि अपने पास नहीं है, बावजूद उसके लायन लायन है और जंगल का राजा कहलाता है। क्यों? He has the courage, he has the confidence, he has the ability to think beyond the others and win over in every situation. वो अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को, अपनी कमजोरियों पर, अपनी काबिलियत की कमियों पर नजर नहीं डालता, उसके पास स्ट्रेंथ क्या है उन पर नजर डालता है। ये बात मैं 4 पंक्तियों से पूरी करूं कि जिंदगी का असली इम्तिहान तो अभी बाकी है। जिंदगी का असली इम्तिहान तो अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान तो अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ऐसा कहकर एरोना फिश से इंस्पिरेशन लेकर हम आगे बढ़े अपने मंजिल की ओर। और ये बढ़ते हुए और एक दिक्कत है, जिसके लिए मैं आपको अगली कहानी सुनाने जा रहा हूं और आपसे सवाल करूंगा। सवाल के जवाब आपसे अपेक्षा मैं नहीं कर रहा हूं इस वेबिनार में, मैं आपको जवाब दूंगा जैसे लोगों ने दिए और बात बताऊंगा आगे। आप इमेजिन करो, आप विजुअलाइज करो, ये मैं कहानी बता रहा हूं कि आप सारे इकट्ठा हुए हैं करिश्मा के, क्योंकि करिश्मा गप्पा अड्डा है तो मैं करिश्मा का उदाहरण दे रहा हूं। करिश्मा सोसाइटी में चारों तरफ बिल्डिंग है, बीच में खुला मैदान है, आपके लॉन्स है, स्विमिंग पूल है। आपको मैं वहां बीच में खड़ा करता हूं, सारे करिश्मा वासियों को, बड़े बूढ़े सभी को, और वहां पर एक आयरन का बार, मान लो आपका जो चौराहा है खुला, वो मान लो 250 मीटर का है। इतना बड़ा हम नहीं सोचे, हम 2 बिल्डिंग का अंतर ऐसे मान लो 50 मीटर का समझे, 2 बिल्डिंगों के बीच में का अंतर। तो मैं एक 50-60 मीटर का बार, जिसकी विड्थ सिर्फ 9 इंच की हो, स्टील का बार एक 9 इंच का मैं
लाकर वहां जमीन पर रखता हूं जो 60 मीटर लंबा है, जमीन पे रखता हूं और उस बार के एक लेकर जाके आपको खड़ा करता हूं और कहता हूं कि चलो एक एक करके इस बार पर चल के उस छोर तक निकल जाइए। तो आप चलेंगे क्या? तो आप कहेंगे चलना क्या है भाई साहब, आप शुरू करो, बोलो शुरू, और लोग एक के बाद एक उस बार पर से 9 इंच के चलते हुए आगे निकल जाएंगे, आगे निकलकर उस छोर पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट ला देता हूं। इस बार को उठाता हूं मैं दोनों छोर, एक छोर को मैं एक बिल्डिंग को ए बिल्डिंग के टेरेस पर रखता हूं और दूसरा छोर वो 60 मीटर का 50 मीटर की दूरी पर जो दूसरी बिल्डिंग है उस पर रखता हूं। अभी आप देख रहे हैं, इमेजिन करिए सिचुएशन कि एक दो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग के बीच में ये 50 मीटर का अंतर है, 60 मीटर का बार है, एक टेरेस पर एक छोर है, दूसरे टेरेस पर दूसरा छोर है उस बार का, और नीचे आपको रोड दिखाई दे रहा है, मान लो रोड है बीच में चल रहा, जहां पे ट्रैफिक पूरी चल रही है जैसे कर्वे रोड पे आपके आसपास चलती है। और मैं आपको एक टेरेस पर ले जाता हूं ये बिल्डिंग के और कहता हूं भाई और बहनों, जैसे आपने नीचे चलने का प्रयास किया था वैसे ही इस बार पर चलिए और ए बिल्डिंग से बी बिल्डिंग पर पहुंच जाइए बार पे चलते हुए। तो आप कहेंगे चकोर भाई ये किस व्यक्ति को ला दिया, नीचे मुझे दिखाई दे रही है ट्रैफिक चल रही है, ये 6, 8वें 9वें मंजिले पे बार रखा हुआ है टेरेस पर, 9वें मंजिले से बार पर चलते हुए एक स्टेप भी मेरा चूका तो मैं तो मौत के घाट उतर जाऊंगा। ये ऐसा कोई प्रपोजल हमको वर्धमान जी का नहीं चाहिए, हम तो यही ठीक है। बात बिल्कुल सही है, आप यही करोगे, कोई भी यही करता। पर मान लो ऐसे में आप इस टेरेस ए बिल्डिंग के टेरेस पर हो और बी बिल्डिंग के टेरेस पर जहां दूसरी छोर रखी है वहां पे चलता हुआ 3 साल का आपका पोता, आपका बच्चा, आपका दोहिता वो बार पर चलते हुए 6, 7, 8, 10 मीटर आगे आ गया हो और आप एक बिल्डिंग के टेरेस के इस छोर पे खड़े हो और दूसरे छोर पे 10 मीटर आगे चलकर आपका नन्ना आ गया है। अब मैं आपको पूछता हूं कि आप मेरे इंस्ट्रक्शन का इंतजार करेंगे या पहले दिमाग में आएगा कि 9 मंजिल तो उतर नहीं सकते, उस तरफ जाते जाते देर हो जाएगी, मुझे तो बच्चे को यहीं से सिग्नल करना है और यहीं से मैंने बार पर चलना शुरू करना है। राइट और नॉट? दिस इज व्हाट विल हैपन कि आप ये बार पर से इस छोर से चलना शुरू करोगे। क्या हुआ फर्क तीसरे सिचुएशन में? दूसरे सिचुएशन में तो आपने कहा था कि हम नहीं चलेंगे, हम नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मौत नीचे दिखाई दे रही थी। अब क्या फर्क हो गया? मौत तो अभी भी दिखाई देती होगी नीचे। फर्क क्या हो गया? फर्क ये हुआ कि आपके जिगर का टुकड़ा आपको 10 फीट के अंतर पर, 10 मीटर के अंतर पर आगे चल के दिखाई देने लगा। आपका जिगर का टुकड़ा जब आपको दिखा, जिससे आप बेहद प्यारे हैं, जिसको आप चाहते हैं, उसकी जिंदगी आपको बहुत प्यारी है, तब आपने आपकी जिंदगी भी दांव पे लगा दी और आपने चलना शुरू कर दिया। मैं पूछता हूं कि आप जब अपनी मंजिल तय करते हैं तब ऐसा क्या चीज दांव पे लगाते हैं जो आपको प्रवृत्त करे, जो आपको इंस्पायर करे, जो आपको कुछ का भी ध्यान न दे और मंजिल तक जाने के लिए आपको इंस्पायर करे? ऐसा क्या है? अगर वो नहीं है, if that is not there, that compelling reason is not there, अगर वो why नहीं है जाने के लिए, तो ये हाउ के बारे में चर्चा सब वेस्ट हो जाएंगी। क्यों? वो अगर मेरा सही नहीं है तो क्या करना है उसको कोई अर्थ ही नहीं रहता। वो कंपेलिंग रीजन की मुझे जरूरत है, मैंने क्या दांव पर लगाया है मेरी मंजिल की ओर जाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसी बातें हो जाएगी। 31 को बैठकर, दिसंबर के 31 को या 1 जनवरी को बैठकर रेजोल्यूशन लिखने के साथ में बैठकर और चिट्ठी चपाटे ड्रॉर में पड़े रहते, वो अगले साल ही देखने को आते हैं। वैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन आमतौर पे बनते हैं। तो आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन में अगर ताकत देनी है, आपके मंजिल तक पहुंचने को आपको प्रवृत्त करना है, तो ये जरूरी है कि आपके पास कुछ ना कुछ दांव पे लगाया हुआ है। आपके जिगर का टुकड़ा उस मंजिल में रखा हुआ है जो आपको लेने जाना ही है, किसी भी परिस्थिति में, इन एनी कंडीशन, दैट इज व्हाट इट इज। तभी आप जा पाओगे। एक सिंपल उदाहरण देते हैं कि एक कैट एंड माइस की, बिल्ली और चूहे की कहानी है। बोले बिल्ली चूहे के पीछे भागती है, ये रेस जब लगती है तब अक्सर पाया गया है, दिस हैज बीन स्टडीड, एंड अक्सर पाया गया कि बिल्ली और चूहे की जब रेस होती है तब चूहा जीतता है, बिल्ली नहीं जीतती अक्सर।
क्यों? क्योंकि बिल्ली अपने भोजन के लिए भागती है, चूहा अपने जीवन के लिए भागता है। जब जिंदगी प्यारी होती है तब अपनी स्पीड अपने आप बढ़ती है, बिल्ली से ज्यादा तेज आप भागने लगते हो। तो मैं भी आपको यही पूछता हूं कि आपने क्या दांव पे लगाया है। दांव पे नहीं लगाया है तो इसके बाद अगले वाले रेजोल्यूशन के लिए, अगले वाले मंजिल के लिए दांव पे लगाई हुई मंजिल देखो, तब जाने में प्रवृत्त होंगे और तब होंगे रिजल्ट कैसे फर्क होता है। और उसके लिए बढ़िया कहानी है सर्जी बुबका की। सर्जी बुबका एक यूक्रेन के पोल वॉल्टर थे। सर्जी बुबका 1985 में 5.70 मीटर की ऊंचाई तक का बार रखकर पोल वॉल्टिंग करते थे। 5.7 मीटर्स की ऊंचाई पर जंप मारना है, एक पोल के जरिए पोल वॉल्ट करना। एक ऐसा जंप मारने वाला 5.7 मीटर्स 1985 में वो 6.25 मीटर तक 2015 तक पहुंचे। उन्होंने 1994 से वर्ल्ड रिकॉर्ड 35 बार किया। हर बार कुछ सेंटीमीटर ऊपर बार चला जाता था और सर्जी बुबका सहज पार कर जाते थे, सहज पार कर जाते। तो अचरज होता था लोगों को कि सर्जी बुबका ये आप कैसे करते हो कि इतना ऊंचा 5.70 मीटर की ऊंचाई को जंप मार के क्रॉस करना, पूरे शरीर को दूसरी तरफ ले जाना बार के, ये मुमकिन इजीली नहीं है। और आप तो इजी नहीं, आप आए दिन उसको आप बेंचमार्क बढ़ाते जा रहे हो, 6.25 मीटर तक पहुंच गए, ये कैसे पॉसिबल है? सर्जी बुबका ने जो जवाब दिया वो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। सर्जी बुबका ने कहा कि ये बात सही है कि मेरा शरीर साथ में चलता है, मैं हर बार 5.70 मीटर से 6.25 मीटर तक पहुंच गया, 35 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया। ये बात सही है बिल्कुल, पर इसके पीछे का राज कुछ नहीं है, सीधी बात है। बोले जब मैं पोल वॉल्टिंग के लिए निकलता हूं, अपनी दौड़ शुरू करता हूं वो जंप मारने के लिए, तब मैं अपने दिल को पहले बार के परे फेंक देता हूं। अपने दिल को बार के परे फेंक देता हूं, शरीर तो अपने आप बखूबी चले आता है पीछे पीछे। अपने दिल को पहले फेंकता हूं, शरीर तो पीछे अपने आप आता है। अगर मैंने अपने पास अपना जिगर का टुकड़ा दांव पे लगाया है तो दिल पहले जाएगा ही, हृदय पहले पहुंचेगा ही। शरीर में आप जो माइनसेस ढूंढते हैं वो तो माइंड ओवर मैटर की बात होगी, शरीर तो पार करता हुआ निकल ही जाएगा, निकल ही जाएगा, कोई डाउट नहीं है। बढ़िया दो पंक्तियां है उस विषय में, वो मैं आप तक सुनाना चाहता हूं। बोले न जाने कौन मेरे हक में दुआ पढ़ता है, न जाने कौन मेरे हक में दुआ पढ़ता है, डूबता भी हूं तो समंदर उछाल देता है। न जाने कौन मेरे हक में दुआ पढ़ता है, डूबता भी हूं तो समंदर उछाल देता है। तो ये समंदर उछालने के लिए वो जिगर का टुकड़ा जरूरी है, और वो जिगर का टुकड़ा हो तो सर्जी बुबका की कामयाबी और आपकी कामयाबी में कोई फर्क होने की जरूरत नहीं है। इसी को लेकर बोस्टन मैराथन की कहानी है, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। बोस्टन मैराथन की कहानी ऐसी है जहां पे 27 माइल की दौड़। वर्धमान, We have got 10 minutes. Actually, we have exceeded 7 o'clock, but you can finish this story. Okay, I will cut off this story, go to something more important, 2 stories, and we will close. I think give me about 5 to 7 minutes. Okay. Okay, two good stories and then we finish. ये कहानी रामायण आप देख ही रहे, रामायण देख रहे, सीता का अपहरण हुआ, रावण ने सीता का अपहरण किया, अपने साथ ले गया, अशोक वाटिका में रखा। रावण भी बलवान शूरवीर इंसान थे, काफी गुणों के मालिक थे। उन्होंने सीता के पास अशोक वाटिका में जाकर हर बार प्रार्थना की कि तुम मेरी हो जाओ, सीता हो, मैं रावण हूं, पर तुम्हारे इजाजत के बगैर मैं तुम्हें अपने कक्ष में नहीं ले जा सकता, तुम मेरी हो जाओ। रावण के ऐसी याचना सीता को कर कर सीता ने कभी हाँ नहीं भरा। तब रावण इतना बलवान व्यक्ति अपने कक्ष में वापस पहुंचता, तब रानी मंडोदरी देखती कि ये क्या हो रहा है, कि इतना बड़ा राजा, इतना प्रबल राजा हताश होकर अपने शयन कक्ष में लौटता है रोज। तब रानी मंडोदरी से रहा नहीं गया। रानी मंडोदरी, जिसको पहले गुस्सा था इस बात का कि आपने सीता का अपहरण कर दिया,
रानी मंडोदरी को ये देखा नहीं गया कि अपना राजा दुखी हो रहा है, तो रानी मंडोदरी ने एक दिन सुझाव दे दिया, राजन, बोले आप ये क्यों नहीं करते, मैं आपको दुखी देखना नहीं चाहती, आप तो इतने बलों के, इतने गुणों के मालिक है, आप में ये भी आत्मसात किया है कि आप रूप बदल सकते हैं, आप एक काम करो, आप राम का रूप धारण कर लो और सीता के सामने उपस्थित हो जाओ। अगर सीता के सामने राम का रूप लेकर उपस्थित होंगे तो सीता ना कहेगी नहीं आप। रानी मंडोदरी का ये सुझाव रावण तक पहुंचा। रावण ने हंसकर रानी मंडोदरी की तरफ देखा और कहा, मंडोदरी, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे राजा को ये बात ध्यान में नहीं आई होगी? तो रानी मंडोदरी को अचरज हो गया, ध्यान में आई तो फिर क्या हुआ? तो बोले ये बात मेरे ध्यान में आई, मैंने इसका प्रयोग भी किया। तो बोले क्या हुआ? बोले शयन कक्ष में अपने वहां जाने से पहले जब मैंने राम का रूप धारण किया और वहां जाने के लिए तैयारी की, राम का रूप धारण करते ही मेरे में मर्यादा पुरुषोत्तम जाग गया, और मर्यादा पुरुषोत्तम जागा तो मेरे से कुछ बोला नहीं गया, मेरे से आगे जाया नहीं गया, मर्यादाओं ने मुझे बांध लिया। मैं आपसे आपकी जीवनी में ये सेकंड लास्ट कहानी कहते हुए ये पूछता हूं कि आप भी आपके जीवन में रोल मॉडल कौन से रखते हैं? जो रोल मॉडल रखोगे उनके गुणों का आप अंगीकरण करोगे, आप अख्तियार करोगे, और वैसे रोल मॉडल के गुण आपको जिंदगी में सफलता की ओर ले जाने में उपयुक्त होंगे। And the last point that I would want to make, Chakur bhai, before we Yes. wind up for today, Yes. is that life is a bouquet of flowers. कोविड का दिन भी आएगा, देखा नहीं था पर आ गया. So you have seen the worst of times maybe, and you have seen the best of times in your lifetime. It's a bouquet. Do you have the choice of choosing the flowers in that bouquet? वो बुके तो आपको जैसा पेश किया है उस बुके को वैसे ही लेना पड़ेगा। उस बुके के फूल आप बदल नहीं सकते। उसके लिए 4 पंक्तियां है कि आप सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने से क्या फायदा, रुख बदलो किनारे मिल जाएंगे। और ऐसे किनारे मिलने की आपको मैं उसके लिए किनारे आपको मिले उसके लिए मेरे बेस्ट विशेस देता हूं। और ऐसा समय आए हर व्यक्ति के लिए जो ये सुन रहा है, ये कहानियां सुनी और भी कई कहानियां जिनसे सुन के वो इंस्पायर होता है, वो ऐसा वक्त लाए अपने आप के लिए। और ये अंतिम लाइन है आज के इस 45 मिनट के गपशप की कि ऐसा कुछ करो कि लोग फेसबुक पर लाइक नहीं गूगल पर सर्च करें। क्या बात, फेसबुक पर लाइक नहीं गूगल पर सर्च करे, तब जाके बात बनेगी। कहा है कि 2 पल की है जिंदगी, 2 पल की है जिंदगी, जीने के इसे असूल बना दो 2। 2 पल की है ये जिंदगी, जीने के इसे असूल बना दो 2, रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। ऐसे खुशबू की तरह आप बिखरते रहे करिश्मा वासी और सारे सुनने वाले, इसी आशा और प्रार्थना के साथ धन्यवाद। Sheila, can I thank him? Yes. Then you can wind up. Yes. Vardhamanji, every moment was really golden, and we've got a great response. I could see the reactions of all of them. Many people putting their learnings on the chat also. We have recorded today's session, and as usual, we are more thirsty and hungry than what we were before your session. We would like to really learn more. Maybe these stories we might have heard, but the messages were so strong, and it really motivates all of us to do great things in life. I'm sure this is not a very small session. The learnings will last with us for our life, and I hope we really act upon it. A wonderful session. Always a pleasure to listen to you, Vardhaman, and all of you will agree that how difficult it is to speak after Vardhaman. So always I speak before him. His logic is perfect. You give him a new topic, even on religious things or some occasions we have met, and he goes straight to the logic, and his questions are more thought-provoking than everything. It's been a pleasure, Vardhaman, and I'm sure all of us would like to have you again
and Karishmites have fallen in love with you, and you've heard about Karishma, you have visited Karishma, but Karishma has got great love and it brings people back. So we are sure you'll come back with great another subject, another topic. We are thankful to Milind and Anu to really, and Radhika Sharma to suggest and come forward with this excellent speaker. I won't call him a speaker, is a great teacher of Yes, life. yes, yes. And without saying that he's teaching, we learned a lot. So it's been a great journey, Vardhaman. I do not have enough words to thank you. Thank you. But Thank you. yes, many blessings, many blessings will come Thank back you. to you in the form of thanks. And I'm sure all of us will go back and share these learnings with their families. That's the best thing in the world if you can motivate people and they get the best potential out of them. Great Thank you. master, Dr. C.A. Vardhaman Jain. So, Yes. Thank you, sir. yeah, Thank you. I would like over to Sheila. Yeah. Thank After Chakor Bhai, I think there's nothing that I can add, but I can just say one thing that you were so humble in your way you spoke. You had stories, you had messages, you had poem in it, and all together, it is just. I think somebody like person like you, when you speak, it just goes into your heart. So I think you're a person who practices all these things that it reaches to us. ते तेवढं आम्हाला ते स्ट्रॉंगली घेता आलं नाही तर कोणीही अशा स्टोरी आम्ही खूप ऐकलेल्या असतो कुठे कुठे त्यातनं मेसेज काढता येत नाही आणि जेव्हा तुमच्यासारखं व्यक्ती बोलतो तेव्हा ते आम्हाला ते खूप मनाला लागलेलं आहे आय थिंक देर लॉट ऑफ टेक अवे आय थिंक फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर ग्रुप वी शो means gratitude for coming to the Karishma Gappa Adda. Thank you so much. And Thank you. I have recorded today's session. I'll send it to you, Vardhaman and Anu and Sheila. And those who Yes, would like to have, please send me your emails. I'll sure. figure out how to send it. These Sir, files are we take a Kodak moment. yeah, So yeah. I would, can you just pose for us like this, sir? Vardhaman, you have to put your fingers Your like hand like this, sir. Okay. yeah. दाढ़ी Thank you. छुपेगी दाढ़ी छुपेगी And next Everybody, time, everybody start your video, please. and next time, Anu will invite us for a coffee with you at her yes place. yes surely One surely more, one more picture, please. Yeah, give me 1 minute. Yeah. किशोरी दीदी ऑन करा. Usha, put your fingers. Yes. Sri, can we Lot have a of people picture? have not opened the. It's दीदी okay. असा हा. Yeah. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you, Vardhaman. Thank you. Let's Thank you. meet you again on this Thank- Gappa Adda. Thank you. Thanks. Thanks a lot for I'm coming. ending the meeting. Yes. Yes. Thank you. And Bye, Vardhaman, bye. please ask, take my call. I'm going to call you after this. yes Yeah. Okay. Bye. Yeah.